کہ آپ کو یہ سچائی پتہ چل گئی، ورنہ آج کل کے دور میں کون کس کا بھلا کرتا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، کورٹ میں آج ہماری ہی جیت ہوگی۔ وہ لوگ جب کیس لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران مہرو کا وکیل جیت جاتا ہے۔ جب سمن شاہ اپنے وکیل کے ساتھ باہر آتی ہے تو اسے اپنے وکیل پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ اسے ڈانٹنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہم آج کا کیس جیت جائیں گے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات آج یہ باہر کیسے گئی ہے کہ ہم لوگ کی یہ پلاننگ تھی۔ وہاں پر شاہ نواز بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی باتیں سن کر تھوڑا گھبرا جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں بولتا اور صرف ان کی باتیں سنتا رہتا ہے۔ سمن شاہ اپنے وکیل سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں سننا، تم نے مجھے کہا تھا کہ آج کا کیس تم جیت کر آؤ گے، لیکن تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تم اندر جا کر سب باتوں سے ایسے کھڑے ہو گئے تھے جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا تمہیں ہر بار میں ہی بتاؤں گا تم نے کیا کرنا ہے؟ تم تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو مجھ سے؟ جس پر اسے ان کا وکیل کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لوگوں میں سے کوئی مخبر ہے جو آپ کی باتیں باہر پہنچا رہا ہے۔ جس پر سمن شاہ اسے کہتی ہے کہ تم اتنے آرام سے بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرے جتنے بھی آدمی ہیں سب اتنے یقین والے ہیں کہ کوئی میری کہی بات ادھر کی ادھر نہیں کرتا۔ آج تک پوری زندگی میں میرے کیس میں یہ بات نہیں ہوئی، اور تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میرے آدمیوں میں سے کوئی مخبر ہے۔ تم اپنے آپ تم خود بیوقوفوں کی طرح کیس لڑ رہے ہو اور الٹا میرے آدمیوں پر الزام لگا رہے ہو۔ جس پر ان کا وکیل ان سے کہتا ہے کہ آپ پھر بھی ایک دفعہ تفتیش کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مخبر نکل آئے، میں ہی سچ بول رہا ہوں۔ جس پر سمن شاہ سے کہتی ہے کہ کوئی سچ بولے یا جھوٹ، اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ فرق اس چیز سے پڑنا چاہیے کہ تم کیس کس طرح سے لڑ رہے ہو، کہ تمہیں لوگوں کے سچ جھوٹ سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہیں اپنا ہنر دکھانا چاہیے کہ تمہیں میں کس چیز کی فیس دیتی ہوں۔ جس پر ان کا وکیل کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اگلی دفعہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سمن شاہ وہاں سے گھر آ جاتی ہے اور وہاں اپنے آدمی کو بلاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھے وہ مخبر ڈھونڈ کر دیں جس نے یہ بات گھر سے باہر نکالی ہے۔ ان کا ملازم ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں جب تک ہوں میں آپ کو جلدی آپ کا مخبر ڈھونڈ کر لا دوں گا۔ وہاں پر شاہ نواز شاہ موجود ہوتا ہے، جس پر سمن ان سے کہتی ہے کہ ڈھونڈنا نہیں ہے، جہاں نظر آئے اسے گولی مار دینا۔ جب شاہ نواز یہ بات سنتا ہے تو اس کے منہ سے جوس نیچے گر جاتا ہے اور اسے کھانسی آنے لگ جاتی ہے۔ اس کی ماں اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتی ہیں کہ یہ اس طرح سے کیوں کھانس رہا ہے۔ وہ اسے کہتی ہیں کہ تمہیں اس بات پر اتنی حیرانگی کیوں ہو رہی ہے؟ شاہ نواز ان سے کہتے ہیں سب لوگ کورٹ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر جب شاہ نواز کا وکیل وہاں جا کر یہ بات کہتا ہے کہ وہاں اس ٹائم پر ایکسیڈنٹ جب ہوا تھا تو وہ اس ٹائم پر گاڑی زین نہیں بلکہ ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا، لیکن مہرو پہلے ہی اپنے وکیل کو یہ سچائی بتا چکی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ انہوں نے پلان کیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، لیکن آپ نے ان کو اس بات پر یقیندہ نہیں رہنے دینا کہ یہ بات سچ ہے۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کورٹ میں یہ بات ثابت کر سکیں کہ ایکسیڈنٹ زین نے کیا ہے، نہ کہ اس ڈرائیور نے۔ جس پر ان کا وکیل ان سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے جس نے بھی بتایا ہے آپ کو جو میں کہہ رہی ہوں آپ نے وہی کرنا ہے۔ جس پر وکیل سے کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ سچائی پتہ چل گئی، ورنہ آج کل کے دور میں کون کس کا بھلا کرتا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، کورٹ میں آج ہماری ہی جیت ہوگی۔ وہ لوگ جب کیس لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران مہرو کا وکیل جیت جاتا ہے۔ جب سمن شاہ اپنے وکیل کے ساتھ باہر آتی ہے تو اسے اپنے وکیل پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ اسے ڈانٹنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہم آج کا کیس جیت جائیں گے، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات آج یہ باہر کیسے گئی ہے کہ ہم لوگ کی یہ پلاننگ تھی۔ وہاں پر شاہ نواز بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی باتیں سن کر تھوڑا گھبرا جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں بولتا اور صرف ان کی باتیں سنتا رہتا ہے۔ سمن شاہ اپنے وکیل سے کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں سننا، تم نے مجھے کہا تھا کہ آج کا کیس تم جیت کر آؤ گے، لیکن تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تم اندر جا کر سب باتوں سے ایسے کھڑے ہو گئے تھے جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا تمہیں ہر بار میں ہی بتاؤں گا تم نے کیا کرنا ہے؟ تم تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو مجھ سے؟ جس پر اسے ان کا وکیل کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لوگوں میں سے کوئی مخبر ہے جو آپ کی باتیں باہر پہنچا رہا ہے۔ جس پر سمن شاہ اسے کہتی ہے کہ تم اتنے آرام سے بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرے جتنے بھی آدمی ہیں سب اتنے یقین والے ہیں کہ کوئی میری کہی بات ادھر کی ادھر نہیں کرتا۔ آج تک پوری زندگی میں میرے کیس میں یہ بات نہیں ہوئی، اور تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میرے آدمیوں میں سے کوئی مخبر ہے۔ تم خود بیوقوفوں کی طرح کیس لڑ رہے ہو اور الٹا میرے آدمیوں پر الزام لگا رہے ہو۔ جس پر ان کا وکیل ان سے کہتا ہے کہ آپ پھر بھی ایک دفعہ تفتیش کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مخبر نکل آئے، میں ہی سچ بول رہا ہوں۔ جس پر سمن شاہ سے کہتی ہے کہ کوئی سچ بولے یا جھوٹ، اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ فرق اس چیز سے پڑنا چاہیے کہ تم کیس کس طرح سے لڑ رہے ہو، کہ تمہیں لوگوں کے سچ جھوٹ سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تمہیں اپنا ہنر دکھانا چاہیے کہ تمہیں میں کس چیز کی فیس دیتی ہوں۔ جس پر ان کا وکیل کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، اگلی دفعہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سمن شاہ وہاں سے گھر آ جاتی ہے اور وہاں اپنے آدمی کو بلاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھے وہ مخبر ڈھونڈ کر دیں جس نے یہ بات گھر سے باہر نکالی ہے۔ ان کا ملازم ان سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں جب تک ہوں میں آپ کو جلدی آپ کا مخبر ڈھونڈ کر لا دوں گا۔ وہاں پر
शाहनवाज शाह मौजूद होता है, जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहाँ नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है। शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहां जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन मेहरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने उनको ये बात इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर वो उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान मेहरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है। तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगी तुमने क्या करना है। तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे। जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम इतने आराम से बात कैसे कह सकते हो। मेरे जितने भी आदमी हैं सब इतने यकीन वाले हैं कि कोई मेरी कही बात इधर की उधर नहीं करता। आज तक पूरी जिंदगी में मेरे केस में ये बात नहीं हुई, और तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे आदमियों में से कोई मुखबर है। तुम खुद बेवकूफ़ों की तरह केस लड़ रहे हो और उल्टा मेरे आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आप फिर भी एक दफ़ा तफ्तीश करवा लें, हो सकता है कि कोई मुखबर निकल आए, मैं ही सच बोल रहा हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि कोई सच बोले या झूठ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि तुम केस किस तरह से लड़ रहे हो, कि तुम्हें लोगों के सच झूठ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए कि तुम्हें मैं किस चीज़ की फ़ीस देती हूँ। जिस पर उनका वकील कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अगली दफ़ा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समन शाह वहाँ से घर आ जाती है और वहाँ अपने आदमी को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वो मुखबर ढूंढ कर दें जिसने ये बात घर से बाहर निकाली है। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं जब तक हूँ मैं आपको जल्दी आपका मुखबर ढूंढ कर ला दूंगा। वहाँ पर शाहनवाज शाह मौजूद होता है, जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहाँ नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है। शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहां जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन मेहरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने उनको ये बात इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान मेहरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है। तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगी तुमने क्या करना है। तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे। जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम
इतने आराम से बात कैसे कह सकते हो? मेरे जितने भी आदमी हैं सब इतने यकीन वाले हैं कि कोई मेरी कही बात इधर की उधर नहीं करता। आज तक पूरी ज़िंदगी में मेरे केस में ये बात नहीं हुई और तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे आदमियों में से कोई मुखबर है। तुम खुद बेवकूफ़ों की तरह केस लड़ रहे हो और उल्टा मेरे आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आप फिर भी एक दफ़ा तफ्तीश करवा लें, हो सकता है कि कोई मुखबर निकल आए, मैं ही सच बोल रहा हूँ। जिस पर समन शाह उससे कहती है कि कोई सच बोले या झूठ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि तुम केस किस तरह से लड़ रहे हो, कि तुम्हें लोगों के सच झूठ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए कि तुम्हें मैं किस चीज़ की फ़ीस देती हूँ। जिस पर उनका वकील कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अगली दफ़ा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समन शाह वहाँ से घर आ जाती है और वहाँ अपने आदमी को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वो मुखबर ढूँढ कर दें जिसने ये बात घर से बाहर निकाली है। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं जब तक हूँ मैं आपको जल्दी आपका मुखबर ढूँढ कर ला दूँगा। वहाँ पर शाहनवाज शाह मौजूद होता है, जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहां नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है। शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहां जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन मेहरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने उनको इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान मेहरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है। तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगा तुमने क्या करना है? तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे? जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम इतने आराम से बात कैसे कह सकते हो? मेरे जितने भी आदमी हैं सब इतने यकीन वाले हैं कि कोई मेरी कही बात इधर की उधर नहीं करता। आज तक पूरी ज़िंदगी में मेरे केस में ये बात नहीं हुई और तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे आदमियों में से कोई मुखबर है। तुम खुद बेवकूफ़ों की तरह केस लड़ रहे हो और उल्टा मेरे आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आप फिर भी एक दफ़ा तफ्तीश करवा लें, हो सकता है कि कोई मुखबर निकल आए, मैं ही सच बोल रहा हूँ। जिस पर समन शाह उससे कहती है कि कोई सच बोले या झूठ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि तुम केस किस तरह से लड़ रहे हो, कि तुम्हें लोगों के सच झूठ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए कि तुम्हें मैं किस चीज़ की फ़ीस देती हूँ। जिस पर उनका वकील कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अगली दफ़ा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समन शाह वहाँ से घर आ जाती है और वहाँ अपने आदमी को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वो मुखबर ढूँढ कर दें जिसने ये बात घर से बाहर निकाली है। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं जब तक हूँ मैं आपको जल्दी आपका मुखबर ढूँढ कर ला दूँगा। वहाँ पर शाहनवाज शाह मौजूद होता है, जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहां नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती हैं कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है। शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहां जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन
नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन महरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने उनको इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर वो उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान महरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है। तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगा तुमने क्या करना है? तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे? जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम इतने आराम से बात कैसे कह सकती हो? मेरे जितने भी आदमी हैं सब इतने यकीन वाले हैं कि कोई मेरी कही बात इधर की उधर नहीं करता। आज तक पूरी जिंदगी में मेरे केस में एक बात नहीं हुई, और तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे आदमियों में से कोई मुखबर है। तुम खुद बेवकूफ़ों की तरह केस लड़ रहे हो और उल्टा मेरे आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आप फिर भी एक दफ़ा तफ्तीश करवा लें, हो सकता है कि कोई मुखबर निकल आए, मैं ही सच बोल रहा हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि कोई सच बोले या झूठ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि तुम केस किस तरह से लड़ रहे हो, कि तुम्हें लोगों के सच झूठ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए कि तुम्हें मैं किस चीज़ की फ़ीस देती हूँ। जिस पर उनका वकील कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अगली दफ़ा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समन शाह वहाँ से घर आ जाती है और वहाँ अपने आदमी को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वो मुखबर ढूंढ कर दें जिसने ये बात घर से बाहर निकाली है। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं जब तक हूँ मैं आपको जल्दी आपका मुखबर ढूंढ कर ला दूंगा। वहाँ पर शाहनवाज शाह मौजूद होता है। जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहाँ नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है। शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहाँ जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन महरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने उनको इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान महरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है। तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगा तुमने क्या करना है? तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे? जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम इतने आराम से बात कैसे कह सकती हो? मेरे जितने भी आदमी हैं सब इतने यकीन वाले हैं कि कोई मेरी कही बात इधर की उधर नहीं करता। आज तक पूरी जिंदगी में मेरे केस में एक बात नहीं हुई, और तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे आदमियों में से कोई मुखबर है। तुम खुद बेवकूफ़ों की तरह केस लड़ रहे हो और उल्टा मेरे आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आप फिर भी एक दफ़ा तफ्तीश करवा लें, हो सकता है कि कोई मुखबर निकल आए, मैं ही सच बोल रहा हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि कोई सच बोले या झूठ,
इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि तुम केस किस तरह से लड़ रहे हो, कि तुम्हें लोगों के साथ झूठ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए कि तुम्हें मैं किस चीज़ की फ़ीस देती हूँ। जिस पर उनका वकील कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अगली दफ़ा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समन शाह वहाँ से घर आ जाती है और वहाँ अपने आदमी को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वो मुखबर ढूँढ कर दें जिसने ये बात घर से बाहर निकाली है। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं जब तक हूँ मैं आपको जल्दी आपका मुखबर ढूँढ कर ला दूँगा। वहाँ पर शाहनवाज शाह मौजूद होता है, जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहां नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है। शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहां जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन मेहरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने उनको इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर वो उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान मेहरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है। तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगा तुमने क्या करना है? तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे? जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम इतने आराम से बात कैसे कह सकती हो? मेरे जितने भी आदमी हैं सब इतने यकीन वाले हैं कि कोई मेरी कही बात इधर की उधर नहीं करता। आज तक पूरी जिंदगी में मेरे केस में ये बात नहीं हुई, और तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे आदमियों में से कोई मुखबर है। तुम खुद बेवकूफ़ों की तरह केस लड़ रहे हो और उल्टा मेरे आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आप फिर भी एक दफ़ा तफ्तीश करवा लें, हो सकता है कि कोई मुखबर निकल आए, मैं ही सच बोल रहा हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि कोई सच बोले या झूठ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि तुम केस किस तरह से लड़ रहे हो, कि तुम्हें लोगों के साथ झूठ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए कि तुम्हें मैं किस चीज़ की फ़ीस देती हूँ। जिस पर उनका वकील कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अगली दफ़ा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समन शाह वहाँ से घर आ जाती है और वहाँ अपने आदमी को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वो मुखबर ढूँढ कर दें जिसने ये बात घर से बाहर निकाली है। उनका मुलाज़िम उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं जब तक हूँ मैं आपको जल्दी आपका मुखबर ढूँढ कर ला दूँगा। वहाँ पर शाहनवाज शाह मौजूद होता है, जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहां नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है। शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहां जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन मेहरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने उनको इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान मेहरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज
शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है? तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगा तुमने क्या करना है? तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे? जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम इतने आराम से बात कैसे कह सकती हो? मेरे जितने भी आदमी हैं सब इतने यकीन वाले हैं कि कोई मेरी कही हुई बात इधर की उधर नहीं करता। आज तक पूरी ज़िंदगी में मेरे केस में एक बात नहीं हुई और तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे आदमियों में से कोई मुखबर है। तुम खुद बेवकूफ़ों की तरह केस लड़ रहे हो और उल्टा मेरे आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आप फिर भी एक दफ़ा तफ्तीश करवा लें, हो सकता है कि कोई मुखबर निकल आए, मैं ही सच बोल रहा हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि कोई सच बोले या झूठ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि तुम केस किस तरह से लड़ रहे हो, कि तुम्हें लोगों के सच झूठ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए कि तुम्हें मैं किस चीज़ की फ़ीस देती हूँ। जिस पर उनका वकील कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अगली दफ़ा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समन शाह वहाँ से घर आ जाती है और वहाँ अपने आदमी को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वो मुखबर ढूंढ कर दें जिसने ये बात घर से बाहर निकाली है। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं जब तक हूँ मैं आपको जल्दी आपका मुखबर ढूंढ कर ला दूंगा। वहाँ पर शाहनवाज शाह मौजूद होता है। जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहाँ नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है? शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहाँ जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन मेहरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए, लेकिन आपने उनको इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है? जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान मेहरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है? तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगा तुमने क्या करना है? तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे? जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम इतने आराम से बात कैसे कह सकती हो? मेरे जितने भी आदमी हैं सब इतने यकीन वाले हैं कि कोई मेरी कही हुई बात इधर की उधर नहीं करता। आज तक पूरी ज़िंदगी में मेरे केस में एक बात नहीं हुई और तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे आदमियों में से कोई मुखबर है। तुम खुद बेवकूफ़ों की तरह केस लड़ रहे हो और उल्टा मेरे आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आप फिर भी एक दफ़ा तफ्तीश करवा लें, हो सकता है कि कोई मुखबर निकल आए, मैं ही सच बोल रहा हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि कोई सच बोले या झूठ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि तुम केस किस तरह से लड़ रहे हो, कि तुम्हें लोगों के सच झूठ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए कि तुम्हें मैं किस चीज़ की फ़ीस देती हूँ। जिस पर उनका वकील कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अगली दफ़ा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समन शाह वहाँ से घर आ जाती है और वहाँ अपने आदमी को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वो मुखबर ढूंढ कर दें जिसने ये बात घर से बाहर निकाली है। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं जब तक हूँ मैं आपको जल्दी आपका मुखबर ढूंढ कर ला दूंगा। वहाँ पर
शाहनवाज शाह मौजूद होता है, जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहाँ नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है। शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहां जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन मेहरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने उनको ये बात इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर वो उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान मेहरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है। तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगा तुमने क्या करना है। तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे। जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम इतने आराम से बात कैसे कह सकती हो। मेरे जितने भी आदमी हैं सब इतने यकीन वाले हैं कि कोई मेरी कही बात इधर की उधर नहीं करता। आज तक पूरी जिंदगी में मेरे केस में ये बात नहीं हुई, और तुम ये बात कह रहे हो कि मेरे आदमियों में से कोई मुखबर है। तुम खुद बेवकूफ़ों की तरह केस लड़ रहे हो और उल्टा मेरे आदमियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस पर उनका वकील उनसे कहता है कि आप फिर भी एक दफ़ा तफ्तीश करवा लें, हो सकता है कि कोई मुखबर निकल आए, मैं ही सच बोल रहा हूँ। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि कोई सच बोले या झूठ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इस चीज़ से पड़ना चाहिए कि तुम केस किस तरह से लड़ रहे हो, कि तुम्हें लोगों के सच झूठ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहिए कि तुम्हें मैं किस चीज़ की फ़ीस देती हूँ। जिस पर उनका वकील कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, अगली दफ़ा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समन शाह वहाँ से घर आ जाती है और वहाँ अपने आदमी को बुलाती है और उनसे कहती है कि आप मुझे वो मुखबर ढूंढ कर दें जिसने ये बात घर से बाहर निकाली है। उनका मुलाजिम उनसे कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, मैं जब तक हूँ मैं आपको जल्दी आपका मुखबर ढूंढ कर ला दूंगा। वहाँ पर शाहनवाज शाह मौजूद होता है, जिस पर समन उनसे कहती है कि ढूंढना नहीं है, जहाँ नजर आए उसे गोली मार देना। जब शाहनवाज ये बात सुनता है तो उसके मुंह से जूस नीचे गिर जाता है और उसे खांसी आने लग जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ हैरानगी से देखती है कि ये इस तरह से क्यों खांस रहा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस बात पर इतनी हैरानगी क्यों हो रही है। शाहनवाज उनसे कहते सब लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर जब शाहनवाज का वकील वहां जाकर ये बात कहता है कि वहाँ उस टाइम पर एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो उस टाइम पर गाड़ी जैन नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था। लेकिन मेहरू पहले ही अपने वकील को ये सच्चाई बता चुकी थी कि उसने ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया है झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने उनको इस बात पर यकीनदा नहीं रहने देना कि ये बात सच है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकें कि एक्सीडेंट जैन ने ही किया है, ना कि उस ड्राइवर ने। जिस पर वो उनका वकील उनसे कहता है कि आपको ये सब कुछ किसने बताया है। जिस पर वो कहती है कि मुझे जिसने भी बताया है, आपको जो मैं कह रही हूँ आपने वही करना है। जिस पर वकील उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सच्चाई पता चल गई, वरना आजकल के दौर में कौन किसका भला करता है। आप बेफिक्र हो जाएं, कोर्ट में आज हमारी ही जीत होगी। वो लोग जब केस लड़ रहे होते हैं तो उस दौरान मेहरू का वकील जीत जाता है। जब समन शाह अपने वकील के साथ बाहर आती है तो उसे अपने वकील पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम आज का केस जीत जाएंगे, और तुम मुझे ये बताओ कि ये बात आज ये बाहर कैसे गई है कि हम लोग की ये प्लानिंग थी। वहाँ पर शाहनवाज भी मौजूद होता है। वो अपनी माँ की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और सिर्फ उनकी बातें सुनता रहता है। समन शाह अपने वकील से कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझे कहा था कि आज का केस तुम जीत कर आओगे, लेकिन तुमने ये क्या हरकत की है। तुम अंदर जाकर सब बातों से ऐसे खड़े हो गए थे जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें हर बार मैं ही बताऊंगा तुमने क्या करना है। तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो मुझसे। जिस पर उसे उनका वकील कहता है कि मुझे लगता है कि आपके लोगों में से कोई मुखबर है जो आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा है। जिस पर समन शाह उसे कहती है कि तुम
اتنے آرام سے بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ میرے جتنے بھی آدمی ہیں سب اتنے یقین والے ہیں کہ کوئی میری کہی بات ادھر کی ادھر نہیں کرتا. آج تک پوری زندگی میں میرے کیس میں یہ بات نہیں ہوئی, اور تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میرے آدمیوں میں سے کوئی مخبر ہے. تم اپنے آپ تم خود بیوقوفوں کی طرح کیس لڑ رہے ہو اور الٹا میرے آدمیوں پر الزام لگا رہے ہو, جس پر ان کا وکیل ان سے کہتا ہے کہ آپ پھر بھی ایک دفعہ تفتیش کروا لیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی مخبر نکل آئے, میں ہی سچ بول رہا ہوں. جس پر سمنشا سے کہتی ہے کہ کوئی سچ بولے یا جھوٹ, اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. فرق اس چیز سے پڑنا چاہیے کہ تم کیس کس طرح سے لڑ رہے ہو, کہ تمہیں لوگوں کے سچ جھوٹ سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. تمہیں اپنا ہنر دکھانا چاہیے کہ تمہیں میں کس چیز کی فیس دیتی ہوں. جس پر ان کا وکیل کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, اگلی دفعہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. سمنشا وہاں سے گھر آ جاتی ہے اور وہاں اپنے آدمی کو بلاتی ہے